Dear students, our today's topic is the Merchant of Venice. As we have been already studying this, we are getting the text that is mentioned in our textbook, that is in abridged form, and we are going through it to understand and get the contents of the play that are in the form of a story, short story, right? So last time, previous class, we discussed that Shylock was told, was implored, was requested by young counselor who was actually Portia, who was in the disguise of a young man, a counselor, a liar, and she was asking him, she was pleading him for mercy, and she was saying that he might tear the bond and he might save the life of an honorable citizen. But we know that in the trial court, Geo was very cruel, and he was saying that nobody could have the power to change his decision, and he would not change his mind at all. Just he would get the 1 pound of flesh, as it was mentioned in the agreement in the bond, and it was uh, compulsory. It was according to the law, and nobody could, we should say that, stop it from implementing that agreement. And he was preparing his long knife, and Antonio was present there in very trouble, in very distress, but he had made his mind just to get uh, 1 pound of his body part of his body. But at the same time, Portia, she was planning, she was doing some plan, she was making some plan just to uh, deliver liberty, just to deliver life to that person, Antonio, who was very dear to her husband, Bassanio. So, till here that we discussed now, once again, Shylock uh, prepared his knife, and he was very keen to get that part of body, and actually he wanted to bleed him to death, uh, and in this way he wanted to take revenge of all that shame that was imparted by Antonio in social life, in social sphere of his fellows. Tarry a little, Jew, said Portia. No, once again Portia said him to wait. Tarry, tarry mean be patient, यानी सब्र करो थोड़ी सी देर के लिए. Jew, she was saying कि यहूदी थोड़ी देर के लिए सब्र करो. There is something else, and no, she had some other thing in her mind. अब हम जब देखते हैं यहाँ पे, तो इससे पहले पहले जो पॉइंट था वो एक क्लाइमेक्स था कि बस अभी छुरी तैयार है, और इसके बाद उसके बॉडी से फ्लैश जो है वो 1 पाउंड निकाला जाएगा, एंड ऑफ कोर्स ही वुड डाई, ही वुड ब्लीड टू डेथ ऑफ कोर्स. तो लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट जो है हमारे सामने आता है. पोर्शिया जो है वो बहुत वाइज लेडी थी. उसने कहा देयर इज समथिंग एल्स. दिस पॉन हियर गिव्स you no drop of blood. The words expressly are a pound of flesh. If in the cutting of the pound of flesh you shed 1 drop of Christian blood, your land and goods are by the law to be confiscated to the state of Venice. अब यहाँ पे उसने ये कहा कि अगर वो एक ड्रॉप भी उसका ब्लड का फ्लो करता है उसका, तो डेफिनेटली अगर एक ड्रॉप भी उस क्रिश्चियन ब्लड का जो है वो शेड करता है, तो इट मीन्स कि उसकी तमाम प्रॉपर्टी जो है कन्फिस्केट हो जाएगी. कन्फिस्केट मतलब होता है भाग के सरकार जब्त हो जाना. और क्योंकि ये बॉन्ड में लिखा हुआ नहीं है, बॉन्ड में सिर्फ यही मेंशन है कि वो उसका 1 पाउंड ऑफ फ्लैश दैट ही विल टेक फ्रॉम हिज बॉडी. तो यहाँ पे दैट वाज अ क्वाइट अ टर्निंग पॉइंट इन रियल. No, as it was utterly impossible for Shylock to cut off the pound of flesh without shedding some of Antonio's blood. अब ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था उसके लिए कि वो एंटोनियोस ब्लड को शेड किए बगैर उसके पार्ट ऑफ बॉडी या उसके फ्लैश जो है वहाँ से ले सके. सो दिस वाइज डिस्कवरी ऑफ पोर्शिया दैट इट वाज फ्लैश एंड नॉट ब्लड दैट वाज नेम्ड इन द बॉन्ड सेव द लाइफ ऑफ एंटोनियो. इस तरह से एंटोनियो की लाइफ जो है यहाँ पे
सेव होगी। और इससे पहले जो कॉन्फ्लिक्ट एक तरह से पड़ रहा था, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है कॉन्ट्रडिक्शन, कि लोग सब वेट कर रहे थे कि अब उसका बॉडी पार्ट लिया जाएगा, और एक तरह से कोर्ट में कॉन्फ्लिक्ट था कि क्या पोर्शिया उसकी जान बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी। इसके दरमियान में एक कॉन्फ्लिक्ट था, ऑडियंस बहुत ईगरली वेट कर रहे थे कोर्ट रूम में, जितने भी लोग थे, सैनिटर्स, ड्यूक एंड ऑल पीपल वांटेड दैट his life should be saved. But it was impossible. It seemed impossible as Shylock was getting very cruel and hot, and all admiring the wonderful sagacity of young counselor. अब तमाम लोग उसकी sagacity का मतलब होता है wisdom, यानी उसके wisdom को we should say that क्या कर रहे थे, हम उसकी विजडम को एक तरह से अप्रिशिएट कर रहे थे कि वो किस तरह से उसने बड़ी अप्रिसिएशन के साथ, बड़ी विजडम के साथ जो है उसने उसको बचाया। अब उसके बाद फिर जो है एक और इसमें पॉइंट हमारे सामने आता है कि वो अ, उसके बाद फिर अटरली का मतलब होता है कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर, राइट। तो अब यंग काउंसलर हु हैड सो हैप्पीली थॉट ऑफ दिस एक्सपीडियंट, एक्सपीडियंट का मतलब होता है हरी, बेनिफिट, वेरी इमीडिएट एडवांटेज, प्लॉटिट्स रिसाउंडेड, प्लॉटिट्स का मतलब है यहाँ पर अपलॉज यानी तारीफ, और क्लैपिंग, और रिसाउंडेड फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द सेनेट हाउस, एंड ग्रेशनो एक्सप्लेन इन द वर्ड्स विच शाइलॉक हैड यूज्ड। और अब ग्रेशनो जो है वो एग्जैक्टली वही वर्ड यूज कर रहा था जो शाइलॉक ने पहले कहा था, ओ वाइज एंड अपराइट जज मार्क यू डैनियल इज कम टू जजमेंट। तो वही वर्ड एग्जैक्टली दोबारा यूज कर रहा था। वो पहले तो वो शाइलॉक यूज कर रहा था बिकॉज ही सीम it seemed that those that counselor was in favor of Shylock, that he was talking about law, he was talking about rule, but now it seemed that it was against him. No, this was going to be against him. So Shylock, finding himself defeated in his cruel intent, in this way Shylock was, we should say that, defeated, यानी उसको शिकस्त हुई इन हिज क्रूअल इंटेंट, अपनी जालिम किस्म की जो इंटेंशन थी उसके माइंड में, उसको शिकस्त हुई। सैड विद अ डिसअपॉइंटेड लुक, और अब उसने बड़ी डिसअपॉइंटेड और मायूसी के साथ कहा दैट ही वुड टेक द मनी, कि अब वो रकम ले लेगा, यानी ऑफ कोर्स उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता था, उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। इट वाज द ओनली चॉइस फॉर हिम दैट ही वुड टेक द मनी एंड ही वुड गो। एंड बसानियो रिजॉइस्ड बियॉन्ड मेयर एट एंटोनियोज अनएक्सपेक्टेड डिलीवरेंस, यानी अब उसकी आज़ादी के ऊपर डिलीवरेंस मुराद यहाँ पर लिबर्टी है, यानी आज़ादी की बात करें तो अब वो उसकी आज़ादी के ऊपर बहुत ज़्यादा बियॉन्ड मेयर यानी अनलिमिटेड एक हैप्पीनेस जो है वो फील कर रहा था। क्राइड आउट, और ऊंची आवाज़ में उसने चिल्लाया, बोला, ऊंची आवाज़ में उसने कहा, हियर इज़ द मनी, कि यहाँ पे रकम है। बट पोर्शिया स्टॉप हिम सेइंग सॉफ्टली देयर इज़ नो हेस्ट, लेकिन पोर्शिया के पास अभी कुछ और भी कहने के लिए था। शी सेड, शी आस्क्ड हिम नॉट टू पे हिम मनी इन, वी शुड से दैट, हेस्ट, इन हरी, जल्दी में, एंड द Jew shall have nothing but the penalty. Therefore, prepare Shylock to cut off the flesh. But mind, you shed no blood, nor do not cut off more or less than just a pound. अब पोर्शिया जो यहाँ पे रुकने वाली नहीं थी। वंस अगेन शी वॉज सेइंग दैट कि जीव जो है उसको प्रिपेयर करना चाहिए, किसके लिए, उसका ब्लड, उसका गोश्त काटने के लिए, और उसने उसका ब्लड भी शेड नहीं करना, और उसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि वो क्या करे, उसमें हाँ, हाँ, वो साथ में ये भी कह रहा था कि उसका उसका ब्लड भी ना बहे, और उसके साथ साथ उसका जो फ्लैश है वो भी कंप्लीटली उतना ही होना चाहिए जितना कि उसने लेना है, यानी 1 पाउंड होना चाहिए। तो ऐसा भी इम्पॉसिबल था कि वो उसका कंप्लीट बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द वेट 1 पाउंड फ्लैश ही ले सके, उससे ज़्यादा ना ले। इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये भी इम्पॉसिबल था। तो यहाँ पे भी वो डेफिनेटली डिफीटेड था। But mind you, shed no blood, nor to cut off more, not less than just a pound, be it more or less by one poor scalpel. मतलब थोड़ा सा मामूली स्क्रैपल, बेसिकली कहते हैं एक ओंस का भी 24th पार्ट जो है उसको कहा जाता है। तो ये कह रही थी कि अब यानी आपने वो लेना है, यानी इसमें इससे मुराद ये है कि वेरी मीगर अमाउंट,
यानी वो उसका फ्लैश ले, बट उसमें एक लिटिल बिट अमाउंट, इवन अ मीगर अमाउंट should not be more or less. Nay, if the scale turn but by the weight of a single hair, you are condemned by the laws of Venice to die, and all your wealth is forfeited to the Senate. हाँ, पोर्शिया ने फाइनल राउंड प्ले किया और उसने कहा कि अगर उसने ज़रा सा भी ज़्यादा फ्लैश लिया, ज़्यादा गोश्त लिया उसके बॉडी से, तो एक बाल के बराबर भी थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ अगर स्केल ने शो किया, तो इसका मतलब यह है कि उसकी तमाम जायदाद जो है वो कॉन्फिस्केट हो जाएगी। फोरफिटेड से मुराद है कि ही हैड टू गिव अप हिज प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन द वी शुड से दैट फेवर ऑफ Senate. Give me my money and let me go, said Sherlock. I have it ready, said Bassanio. Here it is. अब उसने फिर से कहा कि मुझे मेरी रकम दो और मैं जाना चाह रहा हूँ, मुझे जाने दें, लेट मी गो। लेकिन यहाँ पर अब जो है वो सिचुएशन जो है बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो चुकी थी, टेबल्स फॉर कम्प्लीटली टर्न, और अब शार्लॉक वाज गोइंग टू टेक द मनी, यानी अब सिचुएशन रिवर्स हो चुकी थी। शार्लॉक वाज गोइंग टू टेक द मनी व्हेन पोर्शिया अगेन स्टॉप हिम सेइंग टैरी ज्यू। अब दोबारा जब वो उसको रकम देने लगा तो पोर्शिया ने वंस अगेन बेसानियो को रोका और कहा टैरी ज्यू के बी पेशेंट ज्यू, यानी थोड़ी देर के लिए सब्र करो पेशेंट, बी पेशेंट यानी सब्र वाले बनो। आई हैव येट अनदर होल्ड अपॉन यू, मेरे पास एक और पॉइंट भी है जो कि आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, होल्ड अपॉन यू। बाय द लॉज ऑफ वेनिस योर वेल्थ इज फोरफिटेड टू द स्टेट, के वेनिस के कवानीन के मुताबिक तुम्हारी जायदाद जो है वो स्टेट यानी रियासत के पास कन्फिस्केट हो जाएगी। फॉर हैविंग कंस्पायर्ड अगेंस्ट द लाइफ ऑफ वन ऑफ इट्स सिटीजन, क्योंकि आपने एक सिटीजन जो इसका था उसके खिलाफ साजिश की। कंस्पायर का मतलब बताया साजिश करना, सीक्रेट प्लान बनाना, जस्ट फॉर टेकिंग द लाइफ ऑफ दैट सिटीजन, एंड योर लाइफ लाइज एट द मर्सी ऑफ द ड्यूक, और तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो ड्यूक के रहमो करम पर है। देयरफॉर डाउन ऑन योर नीज, इसलिए अब जो है आप अपने घुटनों पे झुको, एंड आस्क हिम टू पार्डन यू, और तुम उससे माफ़ी मांगो। तो दैट वाज द सीन। यहाँ पे अब जो है वो बात कंप्लीट होती है, और यानी ही वॉज कम्प्लीटली डिफीटेड, मुकम्मल तौर पर डिफीट हुआ। सो ही वॉज सेइंग टू हिम, mean Portia was saying to him that he should bend before Duke, and he should ask for forgiveness. Okay, now his life was in the hands of that Duke. The Duke then said, तो अब ड्यूक ने उसको क्या कहा? पार्डन का मतलब होता है माफ़ करना, यानी उसको कह रहा था कि उससे माफ़ी मांगे। The Duke then said to Sherlock that you may see the difference of our Christian spirit. I pardon you your life before you ask it. Half your wealth belongs to Antonio and the other half comes to the state. अब यहाँ पे उसने यानी डिसीजन दे दिया, उसने डिसाइड कर दिया कि हाफ ऑफ हिज वेल्थ, हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी वुड गो टू द स्टेट, और बाकी हाफ जो है वो एंटोनियो की तरफ चली जाएगी, एंटोनियो को मिलेगी, क्योंकि अब ये पेनल्टी उसके ऊपर पड़ रही थी कि वो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड इम्प्लीमेंट नहीं कर सका अपने बॉन्ड को। और इस तरह से उसने एक तरह से कंस्पिरेसी की थी, एक साजिश की थी, एक सीक्रेट प्लान बनाया था उसको उसकी लाइफ लेने के लिए एंटोनियो की। सो now he was to face the penalty. The generous Antonio then said that he would give up his share of Shylock. अब वो फिर से कह रहा था मीन के वो अपनी पार्ट जो था, अपनी प्रॉपर्टी का जो शेयर था, यानी जो एंटोनियो को जाना था बाय लॉ, बाय रूल, said that it was that he would give up his share of Shylock's wealth if Shylock would sign a deed to make it over at his death to his daughter and her husband. अब वो उसने एक और बात की एंटोनियो ने, उसने ये कहा कि वो अपना शेयर जो है वो क्विट कर देगा, गिव अप कर देगा इन द फेवर ऑफ हिज डॉटर मीन द डॉटर ऑफ शार्लॉक एंड हिज सन इन लॉ, राइट। अब उसकी क्या स्टोरी है, उसकी स्टोरी भी थोड़ी सी इसमें एक पार्ट में इंक्लूड है थोड़ा सा। फॉर एंटोनियो न्यू, क्योंकि एंटोनियो को पता था दैट द जियो हैड एन ओनली डॉटर हु had lately married against his consent to a young Christian. अब उसकी बेटी ने एक यंग क्रिश्चियन से शादी की थी, यानी शार्लॉक की बेटी ने, तो इस वजह से वो उसके साथ नाराज़ था
और उसने उसको अपनी प्रॉपर्टी से डिसइनहेरिट कर दिया था, यानी आग कर दिया था अपनी जायदाद से। तो एंटोनियो ने उसको ये कहा कि वो अपना शेयर जो है वो क्विट करेगा और वो उसको देगा, यानी अगर वो मरते वक्त यानी डेथ के टाइम अपनी जायदाद जो है वो अपनी बेटी को और अपने दामाद को दे जाए, तो वो अपने पार्ट को भी क्विट करने के लिए तैयार है। बिकॉज एंटोनियो यू नो दैट के रिच मैन था, एक रिच वेल्दी मर्चेंट था, एंड ही डिडंट नीड any kind of help or any money from anybody. He could even spend a lot of money after, though his we should say that though he was in trouble for the time being, for that time. तो named अब उसका नाम क्या था, क्रिश्चियन का नाम था लोरेंसो, a friend of Antonio's, और ये एंटोनियो का दोस्त भी था, which had so offended Shylock that he had disinherited her, कि उसने उसको डिसइनहेरिट कर दिया था। यानी हम यहाँ पे देखते हैं कि एंटोनियो जो है थोड़ा सा बायस भी था। बायस का मतलब होता है कि अपने रिलीजन के बारे में थोड़ा सा बायस था, और वो वी शुड से दैट कि ज्यूस को डिसलाइक करता था बहुत ज़्यादा। The Jew agreed to this, and being thus disappointed in his revenge and despoiled of his riches, yani mahroom hona, we should say that deprived of his riches, he said, I am ill. उसने कहा कि मैं बीमार हूँ, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, let me go home, send the deed after me। और वो ये कह रहा था कि एग्रीमेंट जो है उसके बाद उसको भेज दिया जाए उसके जाने के बाद, एंड आई विल साइन ओवर हाफ माई रिचेस टू माई डॉटर। और उसने ये भी कहा कि वो अपनी हाफ जो प्रॉपर्टी है, हाफ जो दौलत है, वेल्थ है, वो अपनी बेटी को दे देगा, गेट दी कौन, और उसे जाने दें। देन सैड द ड्यूक, ड्यूक ने फिर कहा कि इसको जाने दें, एंड साइन इट, और इसको साइन करें, एंड इफ़ यू रिपेंट योर क्रूअल्टी एंड टर्न क्रिश्चियन द स्टेट विल फॉरगिव यू द फाइन ऑफ द अदर हाफ ऑफ योर वेजेस। अब वंस अगेन यहाँ पे ड्यूक की भी थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि एक उसकी जो फेवर थी, उसकी जो एक पार्शलिटी थी टूवर्ड्स हिज रिलीजन, वो भी सामने आई कि वो उसको ज़बरदस्ती एक तरह से फोर्स करा था कि अगर वो क्रिश्चियन बनता है तो क्रिश्चियन हो जाता है, अपने रिलीजन को छोड़ देता है, तो उसका जो हाफ अदर हाफ पेनल्टी थी जो कि स्ट्रेट को जानी थी, वो भी उसको माफ़ कर दी जाएगी। दैट वाज नॉट अ गुड एक्शन, इट वाज ऑफ कोर्स एन evil intention, just that he was going to change the religion of Shylock with force, with the use of force. The Duke now released Antonio, उसने ड्यूक ने एंटोनियो को रिलीज कर दिया, एंड dismissed the court, कोर्ट को डिसमिस किया। He then highly praised the wisdom and ingenuity, ingenuity का मतलब होता है क्लेवरनेस, स्किल, यानी अब उसने बहुत ज़्यादा तारीफ की इंजेन्युटी की, यानी पोर्शिया की, ऑफ द यंग काउंसलर हु वाज अ यंग काउंसलर मेयर who was not a young lady according to him, because it appeared like a young man, and invited him home to dinner। और उसने उसको घर पे खाने के लिए इनवाइट किया। पोर्शिया who meant to return to Belmont before her husband replied, I humbly thank your grace but I must away directly, यानी उसने अपने हस्बैंड से पहले पहुंचना था, because it was a secret way that she had reached there, and she defended Antonio, but she didn't want to disclose that at that time. The Duke said he was sorry, he had not free time to stay and dine with him. And turning to Antonio, he added, reward this gentleman, for in my mind you are much indebted to him। और फिर उसने एंटोनियो को कहा कि तुम्हें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसको रिवार्ड देना चाहिए कि इस जेंटलमैन की वजह से तुम जो है अपनी ज़िंदगी जो है ना जीत चुके हो, या तुम्हारी लाइफ जो है वो सेव हुई है। तो यहाँ पर यानी वो उसको कह रहा था कि तुम्हें उसका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। इंडेटेड से मुराद है टू बी ग्रेटफुल, शुक्रगुजार होना। तो यहाँ पे हम जो है इसको स्टॉप करते हैं, एंड नेक्स्ट वी हैव सम क्वेश्चन सेशन इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग।